this video, we're going to understand what are the different levels of strategy. बहुत important point है ये आपके business policy and strategic management subject का. But before we understand what are the different levels of strategy, let us first understand what is strategy management all about. See, if we can define strategy in very, very simple words, तो हम क्या बोल सकते हैं? Strategy is a long-term plan adopted by company, firm, or business to achieve their goal or desired goal, objectives, vision and their set mission. ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकते हैं. एंड मैनेजमेंट, एज वी ऑल नो, मैनेजमेंट मीन्स सिंपली द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. एक गोल्डन डेफिनेशन है ये. अब अगर हम दोनों को कंबाइन करें, स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट को, तो आपको समझ में आएगा. स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट मीन्स टू हैव प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लानिंग, organizing, recording, classifying of strategies which are required into different levels of business. See, simply अगर हम एक business को देखें, उसकी working को देखें, तो there are different levels of working of a business, there are different departments of a business, and then there are different divisions and functions of business. So each department, each function, each division will require different kind of strategy. आप प्रोडक्शन में लगने वाली स्ट्रैटेजी को फाइनेंस की स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली नॉट. सिमिलरली, मार्केटिंग की जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, विल दैट वर्क फॉर एचआर स्ट्रैटेजी? डेफिनेटली नॉट. ये तो बहुत सिंपल लेमैन है. इसीलिए स्ट्रैटेजी अलग अलग लेवल पे जरूरत पड़ेगी. एंड देयरफॉर वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी. एज यू कैन सी in the screen that there are 3 levels of strategy: corporate level of strategy, business level of strategy, and then we have function, which is also known as operational level of strategy. Let us understand each of the strategy in details. Number one is a corporate level strategy. What is a corporate level strategy? Corporate level strategy is nothing but a strategy that help to develop the business accomplish their long term goals. यानी कि ऐसी स्ट्रैटेजी जो बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बनाती है, उसे हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का नाम दे देते हैं. अब आप बताइए किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा, है ना? क्या होगा लॉन्ग टर्म गोल? टू डाइवर्सिफाई, maybe to grow, maybe to merge with another company, maybe to acquire some another company. Like we can see all the banks है ना, acquire होते रहते हैं. तो ऐसे टाइप की स्ट्रैटेजी, ऐसे टाइप के स्टेप्स जब किसी कंपनी को लेना होगा, उसके लिए वो जो स्ट्रैटेजी बनाएगी, दैट विल बी कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी. ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं. सी, वोडाफोन एंड आइडिया वर टू डिफरेंट टेलीकॉम इंडस्ट्री. दे केम टुगेदर एंड नाउ दे आर वर्किंग एज वीआई. So what it was, a one day decision, one night decision? बिल्कुल भी नहीं. There was a long term planning that was required before coming together. So the strategy they have applied will come under merger strategy, and that will be a part of corporate level strategy. नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड वन इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी मतलब द स्ट्रैटेजी विच विल हेल्प इन कंपनी सक्सेस एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी टू डिलीवर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज इन वेरी स्पेसिफिक एंड इन वेरी डिटेल्ड मैनर. यानी कि ऐसी स्ट्रैटेजी बिजनेस को रन करने के लिए हेल्प करेगी, उसके ब्रांड की इमेज को बनाने में हेल्प करेगी, उसको कॉम्पिटिटिव एज देने में हेल्प करेगी, उसको बेटर कस्टमर सर्विस देने में हेल्प करेगी. You have seen when you enter into a Starbucks or when you enter into a CCD, they have a different kind of strategy which they use for their customer services. Therefore, you enjoy going there. Why? Because उनकी strategy में they know how to handle customer. हो सकता है कि उनके कंपैरिजन में आप किसी और कैफे रेस्टोरेंट जाते होंगे, तो आपको वो फीलिंग्स या वो सर्विसेज नहीं मिल पाती होगी. तो that part of strategy, that part of strategic decision will come under business level of strategy. The third level of strategy, which is also the biggest and the important level of strategy, is functional level of strategy, otherwise also known as operational level of strategy. Now let us understand. See, functional और operation तो नाम से ही clear हो जाता है कि ये strategy किसके बारे में होगी. Functions. सी, एक कंपनी में मेजर क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इफ अगर हम डिवाइड करें, वी हैव आल्सो स्टडीड दिस इन क्लास 11th और 12th. देयर आर 4 to 5 मेजर फंक्शन, एज यू कैन आल्सो सी ऑन द स्क्रीन. नंबर 1 is marketing function, finance, HR, प्रोडक्शन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यही ऑपरेशन है जो एक कंपनी डे टू डे लाइफ में करेगी. मतलब अगर एक कंपनी को रन करना है, तो द कंपनी कैन नॉट अवॉइड इट प्रोडक्शन. बनाएगी नहीं तो बेचेगी क्या? द कंपनी कैन नॉट अवॉइड टू लुक आफ्टर इट फाइनेंसेस. ठीक है, मनी रिक्वायरमेंट है, मनी नहीं है तो काम शुरू नहीं होगा. कंपनी कैन नॉट at all avoid
टेक केयर ऑफ इट्स एचआर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय है तो कंपनी है, ठीक है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे मार्केटिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी अपने आप को उस स्पेस में मेंटेन करके रखे, उस रिक्वायरमेंट में अपने आप को मीट करके रखे। सी, इसका एक एग्जांपल है नोकिया का। सी, अगर नोकिया ने स्ट्रैटेजिकली सही स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं की होती, ठीक है, मतलब उसने नहीं की है, उसका आर&डी डिपार्टमेंट उस वक्त वीक पड़ गया, तो आज शायद आपकी जगह, आपके हाथ में आईफोन की जगह नोकिया होता। बट नोकिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉट टेकिंग इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इन अ वेरी सीरियस वे, ठीक है। आगे हम स्ट्रैटेजीज के ये सारे लेवल्स को, सारे ऑपरेशनल फंक्शनल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी या ऑपरेशनल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा? इट मीन्स all the actions and goals that are assigned to various department and that require different kind of business level of strategy will come under the functional and operational level of strategy. Now classification, as you can as we have already discussed, it's production, marketing, HR, research and development. तो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी मीन्स द स्ट्रैटेजी which is adopted either to improve my production, number one, or to efficiently use the resources available for production, number three, to have maximum production possible. मतलब प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, अच्छे प्रोडक्शन को करने के लिए, प्रोडक्शन को बेटरमेंट करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझे तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मीन्स all the strategy that will be adopted to improve a customer image in the mind of customer, in the mind of adopted to improve the brand image in the mind of customer, है ना। लेकिन क्या सिर्फ इतना कहने से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट खत्म हो जाएगा? नो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंक्लूड एवरीथिंग राइट फ्रॉम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, प्रमोशन स्ट्रैटेजी। सी, एक प्रोडक्ट की इमेज, एक प्रोडक्ट कैसे परसीव होता है कस्टमर के दिमाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्राइस में वो लॉन्च हो रहा है, लॉन्च होने के बाद उसके प्राइस का क्या इफेक्ट आता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई नया मॉडल आता है तो उसके प्रीवियस मॉडल में क्या प्राइसिंग इफेक्ट आता है। ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एक इवेंट है या स्ट्रैटेजिक स्टेप है जो कंपनी अडॉप्ट करती है। कैसे उसके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट अ कंपनी अडॉप्ट, वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। कैसे एडवर्टाइज करती है, कैसे प्रमोट करती है, कैसे ऑफर्स देती है, what are all the different promotional strategy that a company adopt, ये सारा कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट हो जाएगा। सी, प्राइसिंग में लिखा हुआ है स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। देर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स अ कंपनी डिसाइड। सी, कभी कभी कंपनी डिसाइड करती है कि वो मार्केट में एंटर करेगी विथ हाई प्राइसिंग। Sometimes a company decide to enter in market with low prices and then further increase it, और vice versa। कोई कंपनी अगर महंगे में एंटर कर रही है तो इट विल डिसाइड टू रिड्यूस द प्राइस इन नियर फ्यूचर और मे नॉट बी, ठीक है। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी को हम स्कीमिंग और पेनिट्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल ने क्या किया है? एप्पल क्या करता है? इट एंटर इनटू अ मार्केट विथ वेरी हाई प्राइसिंग, और उसका कस्टमर के दिमाग में क्या इमेज है कि इट इज स्टेटस सिंबल, ठीक है, तो इसकी प्राइस ऐसी ही रहेगी। द कस्टमर हैज वेरी वाइडली एक्सेप्टेड द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ एप्पल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जोमेटो ने क्या किया, जियो ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया? दे हैव लॉन्च देयर प्रोडक्ट इन वेरी लो एफोर्डेबल प्राइसेस। अब कस्टमर उसके आदी हो चुके हैं। ऑल्दो ये एक साइकोलॉजी मार्केटिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, बट इसको हम इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का एक पार्ट समझ सकते हैं। प्रमोशन स्ट्रैटेजी, आप कैसे प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को, व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू सेट इन द माइंड ऑफ कस्टमर। व्हेन आई से द प्रोडक्ट ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, तो आपके दिमाग में तड़क भड़क, ब्राइट, यंग ऐसा आता है। व्हाई? बिकॉज द एड विच दे मेक इज वेरी वेरी कलरफुल, वेरी ब्राइट, वेरी वेरी ट्रेंडी इन नेचर। अगर मैं आपके दिमाग में मामा अर्थ बोलूँ तो तुरंत आपके दिमाग में सॉफ्ट, एक मदर फिगर, एक बच्चा, ऐसे में जाएंगे, समथिंग विच इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर। व्हाई? बिकॉज जो एड वो बनाते हैं दैट इज वेरी सॉफ्ट, यू कैन सी इट इन वाइट बैकग्राउंड। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं कि आप कैसी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अपनी यूज करते हैं टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया है। सी, डव का एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, क्यों? क्योंकि डव सारे स्ट्रैटेजी पे बहुत सही बैठती है। डव का स्वॉट एनालिसिस अगर हम करेंगे तो डव की स्ट्रेंथ क्या है? ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी, उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको हर जगह ऑनलाइन ऑफलाइन वो अवेलेबल हो जाएगा। उसकी वीकनेस क्या है? देयर आर मेनी सच ब्रांड्स दैट एग्जिस्ट। धीरे धीरे उसकी प्राइसिंग बढ़ती जा रही है।
पहले इतना बड़ा सोप बार 20 का था, अब वो महंगा हो चुका है। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि डव कैन एंटर इनटू अ न्यू एरिया ऑफ चाइल्ड केयर एंड मेल प्रोडक्ट्स। देन थ्रेट्स क्या है, ऑब्वियसली द इंक्रीज इन कंपटीशन। एक सेचुरेशन लेवल आ रहा है, धीरे धीरे और आता जाएगा, लोग दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करते जाएंगे। नीड फॉर फंक्शनल स्ट्रैटेजी, हमने जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़े, लाइक वेदर इट बी प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, है ना, इसकी नीड क्या है। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कंपनी की एचआर स्ट्रैटेजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा, एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस छोटी सी चीज से हमको समझ में आता है कि स्ट्रैटेजी हर एक लेवल पे क्यों इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर द नीड फॉर फंक्शनल स्ट्रैटेजी विल बी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली it reduce the time taken for the decision। ऑलरेडी सेट स्ट्रैटेजी है आपकी, ऑलरेडी सेट प्लान है आपका, तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में अननेसेसरी टाइम से बहुत ज्यादा बचाएगा। इट गिव constant support to the managers। A set strategy help manager to take decision quickly। It help manager to plan goal quickly। It help manager to promote employees quickly, etc। ठीक है, and helps in coordination। Obviously, अगर there are 100 employees in a company and they have a set plan of what to do for the whole week, there will be no chaotic situation, right? वैसे ही अगर स्ट्रैटेजी पूरी प्लान्ड है तो वो कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्कोप ऑफ स्ट्रैटेजी। सी, स्कोप ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब है स्ट्रैटेजी की जरूरत कहाँ कहाँ पर है, या फिर स्ट्रैटेजी का एरिया कहाँ कहाँ तक जा सकता है। तो ऑब्वियसली इन द फाइनेंस मैनेजमेंट एरिया, एज वी हैव डिस्कस्ड, अपार्ट फ्रॉम कैपिटल बजटिंग, इट ऑल्सो हेल्प टू मैनेज द कैश फ्लो। इन मार्केटिंग, मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करोगे, क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑनलाइन दे रहे हो कि ऑफलाइन दे रहे हो। ऑनलाइन दे रहे हो तो देयर विल बी नो मिडिल मैन, तो प्रोडक्ट थोड़ा कम में दिया जा सकता है क्या, है ना, एक्सेट्रा डिसीजंस दैट आर टेकन विल बी अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। Then HR strategy, what is your HR planning requirement, how you are going to train and develop your employees, what is your production strategy, and obviously in the area of research and development, as we discussed the example of Nokia, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में